ਸੀ ਕਾਬੂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CNS ਤੇ PNS। CNS ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ। ਤੇ PNS ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਨ। ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਤੱਕ ਆ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਨੀ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ। ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ। ਬੱਚੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖਰੋਟ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨਿਸ ਜਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਨਲੀ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ, ਮੱਧ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਰੀਬਰਮ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੈਰੀਬਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਚਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੋਚਣਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈਰੀਬਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਅਗਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਥਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ। ठीक है, अगले दिमाग के बाद साढ़े इत्थे हुंदा है मध। आ साडा हुंदा है मध दिमाग, विचकार जुड़ा हुंदा है। मध दिमाग का काम की है, जिहड़ियां भी कुछ अनिश्चित क्रियावां हुंदियां हन, अनिश्चित क्रियावां साडे भोजन नूं खाना, मान लो देखो हुण आपां नूं कोई सामने कोई चीज़ पई है, बहुत वधिया चीज़ पई है, मान लैने आपां मैगी पी है, मैगी मैनूं लगदा सारे बच्चों नूं पसंद हुंदी है, मैगी पी है, मैगी नूं वेख के बहुत भुख भी लगी है, साडे मूँह च अपने आप पानी आ जांदा ना, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी आ गया मूँह च, पानी आ गया, हाँ पानी पीना है। वो क्या हुंदा है, उहदे च आपां कोई सोचदे आ? नहीं सोचदे ना। जिहड़ी चीज़ आपां नहीं सोच रहे अपने आप ही हो रही है, उहनूं कौन कंट्रोल करदा? साडा मध दिमाग। क्लीयर है? मध दिमाग के जो आप इत्थे जानते हैं, साढ़े इत्थे किंदे ग्रंथियां होंदियां, ग्रंथियां बारे भी अज आपां पढ़ांगे होनी। जिहड़ी आ हुंदी है हाइपोथैलेमस हुंदी है, इधर ग्रंथि हुंदी साडी पिट्यूटरी ग्रंथि, इधर हुंदा साडा मेडुला, ते इधर हुंदा है सेरिबैलम। ये तो दसवीं की पढ़ है। मध दिमाग समझ आ गया। उस तो बाद आंदा साडा पिछला दिमाग। पिछले दिमाग के 3 भाग होंगे, एक तो मेडुला, एक हुंदा है सेरिबैलम, एक हुंदा है पॉन्स। ठीक है, आ 3 भाग होंगे हैं। तीनों भाग चो मेनली 2 दे आपां करने हैं। मेडुला, मेडुला की काम करता है, किसी चीज़ नूं वेख के उल्टी आ गई, ठीक है, साडा ब्लड प्रैशर है, खून का दाब है, ठीक है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। क्लियर होगा? मेडुला ऑब्लिगेटा काम की करता है, जेडे साडे अनिश्चित काम होंदे हैं। देखो ध्यान रखना है, अगला दिमाग ने सारे इच्छित काम करने, इच्छित दस्से सी ना, इच्छा मुताबिक होंदे हैं। मध दिमाग ते पिछले दिमाग दोवां दे काम है अनिश्चित। कुछ काम करता है मध दिमाग, अनिश्चित क्रियावां नूं कंट्रोल करता है, कुछ नूं पिछला दिमाग कंट्रोल करता है। जिवें मेडुला बारे दसता, मेडुला करता है जिवें साह दर नूं रेट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर नूं कंट्रोल करता है, उल्टी जो आती है वो भी मेडुला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला बारे पता लग गया। इस तो बाद है सेरिबैलम। सेरिबैलम मेनली की काम करता है, साडे शरीर के संतुलन नूं बनाउण च हेल्प करता है। एक सीधी रेखा च आपां जाना है जां एक गोल पथ ते पूरा आपां घूमना है, उहनूं कौन बैलेंस करता है? सेरिबैलम। दिमाग बारे क्लीयर हो गया? क्वेश्चन आ जाए तुसीं इस तरह ही दसना है कि साडे दिमाग के 3 भाग होंदे हैं, तीनों बारे डायग्राम ते आ तुसीं मेन इहदी डिटेल कर देंगे। होगा क्लीयर? देखो हुण आपां कीता सी नाड़ी प्रणाली बारे, उस तो बाद आ रहा अपने कि नाड़ियां जिहड़े न्यूरोन है साडे सारे अंग तक पहुंचते हैं, साडे सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, तो आएगा नहीं। न्यूरोन जिहड़े हुंदे हैं साडे पूरे बॉडी पार्ट तक नहीं होंगे। इसका मतलब की होगा, जितों तक न्यूरोन है सिर्फ सूचना उतों तक जाएगी। कुछ भी हो सकता, आपां सूचना साडी सिर्फ न्यूरोन करके होंदी है। ठीक है, पहला तो ये आ गया। इस करके नाड़ी प्रणाली थां ते हुण आपां करांगे अंतरसावी ग्रंथियां, कि साडे शरीर च कुछ इहो जिहियां ग्रंथियां होंदियां हन जिहड़ियां कि रसायनिक पदार्थ पैदा करदे हन, जिन्हों आपां कहंदे हां हारमोन। इन्हां ग्रंथियां दी क्यों लोड़ पई? ये भी साडी वैसे नाड़ी प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है। जिथों तक न्यूरोन नहीं पहुंचते उत्थे ये ग्रंथियां काम करदियां हन। पहला तक रीजन ये हो गया भी ये ग्रंथियां क्यों काम करदियां हन। सैकेंड रीजन की है, जो न्यूरोन च हुणे आपां कीता सी भी सूचना जा रही है, एक न्यूरोन च एक वेले एक सूचना जाएगी, यानी कि टाइम लग जाएगा। बाकी सूचना जो मान लो कितने होर कोई भी सूचना आ रही है, मान लो एक पास मेरा हाथ चल रहा है, एक पास मेरे हाथ कंडा घूम रहा है, क्लीयर है, एक सूचना एक न्यूरोन ने पास करनी तो दूजी सूचना तक की होएगा, उस वेले भी यह ग्रंथि काम करदियां हन। क्लीयर होगा कि अंतरसावी ग्रंथियां कदों किवें काम करदियां हन। अंतरसावी ग्रंथियां की होंदियां हन, साडे शरीर विच कुछ ग्रंथियां होंदियां हन, वो ग्रंथियां की करदियां ने, जां तां हारमोन पैदा करदियां हन, जां उन्हां दी एक अगों डक्ट हुंदी है, और नली होंदी है, और नली राही की करदे जिथे लोड़ होंदी है उत्थों तक वो हारमोन पहुँचा दिंदियां हन। अगों वो हारमोन काम करते हैं, और मैं तुहानूं दस्सांगी की काम करते हारमोन। ठीक है, जां की हुंदी उन्हां दी कोई नली नहीं हुंदी, वो की करदी है उत्थों हारमोन छड्डणगियां, वो हारमोन की है खून च मिल जाएगा, खून तो मिलन तो बाद वो हारमोन कित्थे जाएगा जिथे उस हारमोन की जां उहदी लोड़ हुंदी है, उस अंग तक वो हारमोन पहुँच जाता है। हुण आपां कुछ ग्रंथियां बारे करन लगे हां। देखो जिवें आ मान लैणे अपनी खोपड़ी है,
ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ठीक है, इतने गले च अपने की होंगी है, एक होर ग्रंथि होंगी है। ठीक है, इतने मान लेना अपने किडनी है, किडनी के उपर की होंगी है ग्रंथियां होंगी है एड्रीनल, इतने टेस्टिस, चलो मैं बाद दस दी हाँ। ब्रेन उन्हें किया, दिमाग किया, दिमाग च आप दो ग्रंथियां की, एक तो की हाइपोथैलेमस, एक आप की पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी तरह अगर आप कहते हैं थायराइड ग्रंथि, इधर आ गया अपने को एड्रीनल, इधर ही अपने पेट च होंदा लूबा, लूबा ग्रंथि जिन्होंने पैनक्रिएटिक ग्रंथि भी कहते हैं। हुण देखो अंतर सारी ग्रंथियां साडे शरीर च जिहड़े तुहाडे सिलेबस दे विच मैं वही ग्रंथि करावांगी। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ग्रंथियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਧੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ। ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪਿਚਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਚਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਪਿਚਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? क्योंकि सारिया ग्रंथियां में कंट्रोल करती है, बाकी जिन्नियां भी बॉडी च ग्रंथियां होंदियां हैं उन्होंने भी कंट्रोल करती है। नाल ही करती है अपने अंदरों कुछ हार्मोन पैदा करती है। किहड़े हार्मोन पैदा करती है? वाधा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन पैदा करती है। वो हार्मोन की करते हैं साडी शरीर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जिन्हां दे विच पिछली ग्रंथि बड़ी एक्टिव है, हार्मोन पैदा कर रही है, उन्हां दी ग्रोथ वधिया होंदी है। जिन्हां च नहीं होंदी उन्हां दी ग्रोथ वो की होंदी पोले होंदी है, उन्हां दी हाइट नहीं होंदी बच्चों की। क्लीयर हो गया? इसका की काम है? पहला तो की है ये ग्रंथि वाधा हार्मोन पैदा करती है, यानी साडी ग्रोथ नू कंट्रोल करती है। साडी ग्रोथ जिहड़ी है हाइट है जिहड़ी वो इसे करके होंदी है, मेन इस ग्रंथि करके होंदी है। सैकेंड ग्रंथि की करती है ये बाकी दी जिन्नियां भी ग्रंथियां पढ़ांगे आपां उन्हां नू कंट्रोल करती है। कई बार की होंदा है ग्रंथि वाधा ग्रंथि जिहड़ी होंदी है कुछ ज़्यादा ही हार्मोन पैदा करने शुरू कर दिंदी है जां काम नहीं करती, तो उस वेले जिहड़ी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसनूं की मैसेज कन्वे करती है, उसनूं एक्टिव करने का काम करती है। इहदा कोई ज़्यादा रोल नहीं है हाइपोथैलेमस का, सिर्फ इहदा की रोल है पिछड़ी ग्रंथि नूं एक्टिव करना। हो गया क्लियर दो ग्रंथियां बारे। सैकेंड ग्रंथि जिहड़ी आ गई अपने को थायराइड ग्रंथि। हुण थायराइड बारे तुसीं पढ़िया भी होना है। थायराइड ग्रंथि जिहड़ी है वो थायरॉक्सिन पैदा करती है। थायरॉक्सिन बारे सुनिए, थायरॉक्सिन की करती है साडे शरीर दे विच जिहड़ा है असीं खाने चर्बी है, कार्बोहाइड्रेट है, उत्ते जिहड़े है मैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ठीक है, मान लो थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही, थायरॉक्सिन नहीं आ रहा है, तो साडे की एक गला आके सुज जाएगा, तो सानू किहड़ा रोग हो जाता है? गिल्लड़ नामक रोग हो जाता है। इस करके सानू गिल्लड़, ये तुहाडा बोर्ड की क्लास वास्ते भी क्वेश्चन है कई बार आ रहा है कि जिहड़े समुंदर एरिया च हुंदे हन उन्हां नूं आयोडीन खान जो नमक क्यों दिता जाता है, जां साडे नमक विच आयोडीन क्यों पाई जाती है? रीजन ये है जी आयोडीन है वो इस ग्रंथि नूं हेल्प करती है। जिन्ना आयोडीन होएगा थायरॉक्सिन उन्ना हार्मोन पैदा होता है। ठीक है, यानी उहदे अमाउंट नूं कंट्रोल करती है। इस करके आयोडीन खाण नाल की है जिहड़ा सानूं गिल्लड़ नामक रोग नहीं होता। गिल्लड़ मतलब वाइट है, वो किस करके होंदा है? जदों थायरॉक्सिन पूरी तरह नहीं निकलता, और नहीं निकलेगा क्योंकि ये ग्रंथि काम नहीं करेगी। क्लीयर हो गया गले च? उस तो बाद आएंगे अपनी इतने लुब्बा ग्रंथि होती है जिन्होंने पैनक्रेटिक भी कहते हैं। पैनक्रेटिक, ये पैनक्रेटिक ग्रंथि की करती है? इंसुलिन पैदा करती है। सुनिया ना इंसुलिन बारे? इंसुलिन जो साडे ब्लड में शक्कर शुगर का लैवल को कंट्रोल करती है। शुगर कई बार जी इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, शुगर घट जाती है। इंसुलिन जो घट हो जाए तो शुगर का लैवल बढ़ जाता है, यानी जिहड़े कईयां डायबिटीज़ होंदी है, डायबिटीज़ इसे करके होंदी है, इस ग्रंथि जो प्रॉपर काम नहीं करती। कई बार क्वेश्चन आ जाता मेन कि इंसुलिन के इंजैक्शन दिते जाते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट होंगे है उन्होंने ताई दिते जाते हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी में इंसुलिन का लैवल बराबर नहीं होंदा। ठीक है, इंसुलिन यानी कि जिहड़ी शक्कर के लैवल को कंट्रोल करती है वो ग्रंथि है साडी पैनक्रेटिक ग्रंथि। जे असीं चाहते कि साडे खून च इंसुलिन का लैवल सही रहे तो ये ग्रंथि का काम करना भी जरूरी सही होंदा भी सही काम करे। उस तो बाद आ गया अपने को एड्रीनल ग्रंथि, फोर्थ नंबर पे। जिहड़ी एड्रीनल ग्रंथि है वो किहड़ा हार्मोन पैदा करती है? एड्रेनालिन।
देखो ये ग्रंथि का ਇਹਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣੋ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, मेरा ਕੀ ਹੋਏਗਾ? पसीने पसीने हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे पसीने में? क्योंकि जो शेर आया तो मेरी एक ग्रंथि की होगी एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट करके उन्हें मेरा जो ब्लड प्रैशर से उन्होंने बताता, ਇੱਕੋ ਦਮ सारी क्रियावां अंदर शरीर के अंदर तेज होनी शुरू हो गया। मैं सोचन लग पई, हाँ भजन की कोशिश करन लग पई, ਇੱਕੋ ਦਮ अपना फेस ਇੱਕੋ दम डर च आ जाता ना फेस से, कोई भी चीज़ अचानक अपने सामने आ जाए, उस वेले ग्रंथि काम करती है। ये ग्रंथि सानू डर का अनुभव करवाती है। क्लीयर हो गया? इस ग्रंथि एक कितने होंगी है? जिथे साडी किडनी होंगी है, उन गुर्दे होंगे हैं, उन्होंने उपर होंगी है ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। उस तो बाद फिफ्थ आ गई टेस्टो, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੈਨਿਸ, ਤੇ 6 ਆ ਗਈ ਓਵਰੀ, ਅੰਡਾਣੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਸ ਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੈਨਿਸ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। क्लियर हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करती है पेनिस। उस तो बाद जो अंडाणु है ये की है? दो तरह के हार्मोन पैदा करती है, एस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरोन है वो पता ही है, जी लेडीज़ च चेंजिस आती हैं, लड़कियां जो 12 साल तो बाद जो चेंजिस आती हैं, उन्होंने सारे चेंजिस ये दोनों हार्मोन है कंट्रोल करते हैं। क्लीयर हो गया कि नाड़ी प्रणाली में साढ़े इन्होंने दोवों का ही रोल है। एक तो साढ़े दिमाग का नाल सुखना नाड़ी का भी रोल है, तो नाल ही की है साडा ये जो अंतरसावी ग्रंथि है ये की करती है, साडी पूरी तरह हेल्प करती है। ताइयों देखो बच्चों, इन्होंने ग्रंथियां करके की होंदा है, अपनी फिंगर पता ही है सिमिट्री होंदी है भी, जिवें इधर है उवें इधर है। पर पौधों में की होंदा है? इस तरह की कदे सिमिट्री नहीं होंदी ना, कदे पत्ते कित्थों उगी जाते हैं, कदे पत्ते कित्थों उगी जाते हैं, क्योंकि अपने की है एक नाड़ी प्रणाली है, वो सारे शरीर के सारे शरीर को कंट्रोल करती है, उन्होंने की करती है? नियंत्रण करती है। समझ आ गया? नुक बारे भी, दिमाग बारे भी, तो इन्होंने ग्रंथियों बारे भी। हुण देखो पौधे की होंदा है? पौधे भी तो वाधा करते हैं, पौधे तो बीज होंगे है, की होंदा उन्हां च? पौधों भी की होंगे उन्होंने हारमोनस होंगे हैं। हुण आपां करदे हां पौधों में जिहड़े हारमोनस होंगे हैं। कदे वेखे तुसीं पौधे टच मी नॉट प्लांट वेखे, छूई मी दा पौधा, कि हाथ लाण के जिहड़े उहदे पत्ते होंगे हैं वो की अपने आप को इकट्ठा कर लेंदे हैं। क्यों कर लेंदे हैं? क्योंकि उन्होंने भी की होंदा है इस तरह का अनुवर्तन होंदा है, प्रतिक्रिया होंदी है। मतलब आपां एक गमला है, गमले च आपां जदों देखदे हां पौधा उगाया, पोट है मान लो, इहदे च आपां कदे वेख्या कि जिहड़ियां जड़ां थल्ले वल जांदियां ते तना हमेशा उपर वल जाता है। जना इत्थे की है दोवें जिहड़ा किसी गमले च लग्या है पौधा, दोवें तरह के अनुवर्तन कर रहा है। जिहड़ा थल्ले वल जा रहा है वो किहड़ा अनुवर्तन कर रहा है? भू अनुवर्तन, यानी धरती वाला अनुवर्तन। ते जिहड़ा उपर है वो किस वल जा रहा है? जल अनुवर्तन भी कर सकता है, प्रकाश अनुवर्तन भी कर रहा है, जो सूरज का प्रकाश आ रहा है मान लो प्रकाश अनुवर्तन कर रहा है। इस कंसैप्ट को ध्यान में देखो। मान लो मैं गमले को उल्टा करता, मान लो गमला इत्थे है, इत्थे पौधा है, देखिए तुसीं कि जिथे सूरज का प्रकाश होएगा वह तना उधर ही जाएगा, इस तरह ग्रो करेगा। जड़ा जाएंगे धरती वाल तो थल्ले वाल जाके वेखे करके वेख्या जी, घरे कोई भी गमला होएगा जो तुसीं बॉटल च मनी प्लांट वगैरह उगाने उन्होंने करके वेख्या जी, सीधी है तो जड़ा जी जड़ा थल्ले जाएगी तो तना हमेशा उपर वल जाएगा। पर जो उन्होंने इस तरह करता तो तना तो ही उपर वल जाएगा। क्यों उपर वल जा रहा है? जितों उन्होंने सूरज का प्रकाश मिल रहा है उधर ही उन्हें जाना है। इस तरह आप कहने प्रतिक्रिया को प्रकाश अनुवर्तन। तो जड़ा किधर जा रही है? धरती वाली जा रही, इस तरह आप कहेंगे भू अनुवर्तन। क्लीयर है? अनुवर्तन समझ आ गया कि पौधे भी बाहर वाले वातावरण प्रति अनुक्रिया करते हैं। बस एक लास्ट छोटा टॉपिक है कि पौधे किस तरह के हार्मोन होंगे हैं, उन्होंने हार्मोन बारे दस देंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि पौधे 4 तरह के हार्मोन होंगे हैं। पहला है ऑक्सिन, दूजा है जिबरलिन्स, थर्ड है अपने को साइटोकाइनिन,
फोर्थ अपने को है एब्सिटिक एसिड। एब्सिटिक एसिड या तेजाब, ध्यान ਨਾਲ सुनिए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ उधर नहीं होता, ऑक्सीजन उस तो उल्ट दिशा में होता है, छांव वाली साइड पे होगा, ताकि छांव वाली थां तो ग्रो करेगा। इसे करके जी शाखा होंगी, शूट होंगी, वो इस तरह मुड़ती जाएगी। पहले तो पता लग गया ऑक्सीजन की करता है, पौधों की ग्रोथ में हेल्प करता है, वाधे में हेल्प करता है। सैकेंड आ गया जो जिबरलिन है, वो की करता है, उसकी चौड़ाई हेल्प करता है, उन्होंने विर्थ ਵਧਾਉਣ ਚ भी हेल्प करता है। पौधे ऊपर तो लंबे तो हो रहे हैं, नाल की हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। क्लियर। थर्ड है जो साइटोकाइनेट, ये करता है विभाजन का काम करता है। जिथे जिथे बीज है या फल है फुल है, उत्थे कि उन्होंने विभाजित करी जाएगा तो उन्होंने ਵਧਾਈ जाएगा, यानी ये सैल विभाजन का काम करता है। तो लास्ट जोड़ा है एब्सिटिक तेजाब, वो की काम करता है, उन्होंने ग्रोथ को रोकने का काम करता है। उल्टा क्या है कि वाधा रोधक है, वाधा रोधक मतलब जो ग्रोथ को रोकने का काम करे। आ किसी वाधा करने का काम करता है ऑक्सीजन, ਤੇ ਐਬਸਿਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਬੂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਕਲੀਅਰ।